Hello guys, good evening and a very warm welcome to all of you. So welcome to the platform Gradeup and also a very warm welcome to all of you on our YouTube channel Gradeup IAS. So my name is Naman and today we are starting up with a very important series today. So the name of the series is What Is, right? So in the blank there will always be a word, there will always be a term, right? Which we'll try and decode, we'll try and understand the concept behind it, right? Now these terms generally are going to be terms over which, they may be covered out in newspapers, or these terms may feature on a regular basis in books also, and they might trouble you, right? For example, this term today that we are going to discuss, demographic dividends, right? तो आपने कई जगह इस टर्म को देखा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को, राइट? और भारतीय इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इस टर्म का यूज किया जाता है. कहा जाता है कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात है, राइट? सो आज हम इस टर्म को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म का अर्थ क्या है. सो मेरा नाम नमन जैन है and I have mentored UPSC aspirants for more than 5 years now, and I've been an alumni of Hindu College University of Delhi, and I've mentored UPSC एस्पिरेंट्स. और मेजरली जो मेरा सब्जेक्ट रहता है जिससे मैं डील करता हूं वो है इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स विद मेंस आंसर राइटिंग. ऑल्सो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टू शेयर. तो ग्रेडअप पर हमारे पास स्क्रैच एंड सेव ऑफर चल रहा है, राइट? वेयर यू हैव अप टू 50% ऑफ ऑन UPSC CSE 2021 एंड EPFO एग्जाम्स, राइट? साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, एग्जाम डेज में अब केवल 118 दिन बचे हैं. सो इन केस यू आर अटेम्प्टिंग द 2021 अटेम्प्ट, राइट? सो देयर आर जस्ट 118 days left to 27th of June 2021. Also, I see a lot of guys sitting up on YouTube. So guys, please do like, share and comment on the session. आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, राइट? चलिए, लेट्स गेट स्ट्रेट अहेड टू द टर्म. सो इस टर्म की डेफिनेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन हमें दी है UNFPA ने. UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, राइट? और ये क्या कहता है? UNFPA says that demographic dividend is basically the growth potential of any economy, right? With respect to the age structure in that economy. मतलब कि सर, for example, in any economy, I have a very high number of dependent population. Let's take the case of Japan here, right? So Japan today has a very high number of dependent population. उनका population aging population कहलाता है, right? तो ऐसी economy में जो replacement rate होगा वो optimum नहीं होगा, because of which the working age population number is going to be low, whereas dependent population number is going to be high, right? तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल later stages में deal कर रहे हैं. So there is going to be paucity of labor, plus there is going to be extra burden on the resources in the country. ठीक? Demographic dividend बिल्कुल इसका उल्टा है. For example, take the case of countries like India. So India में, right, our birth rate has also declined at a very fast pace. Our death rate has also declined due to medical improvements that have taken place, and जो working age population है, that number has substantially increased over the period of time, with dependent population number relatively quite low. And thereby, if this population contributes in higher capacities, right, production levels of the economy will basically blow out. ये increase कर जाएगा बहुत rapid rate से, right? And this is basically demographic dividend. तो इस term को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा demographic transition exactly. ठीक है? So ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता कब है? When does this take place, right? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड occurs when a country, right, with both increasing number of young population, right, plus has a declining fertility rate, right? तो आपने सुना होगा एक टर्म TFR, जिसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट. Now, total fertility rate is nothing but the average number of children born to a woman during her productive years, right? During her reproductive years. So, total fertility rate हमारी economy में it is close to 2.2 today. Close to 2.2 today, right?
और रिप्लेसमेंट नंबर कितना है, इट इज क्लोज टू 2.1. सो एज दिस नंबर इज डिक्रीजिंग डाउन, राइट, फर्टिलिटी नंबर्स तो डिक्लाइन कर रहे हैं, इसका मतलब डिपेंडेंसी कम होगी हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन फैसिलिटीज में, राइट, एंड द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन is also going to be minimum, which means we will have very few persons below the age of 15 and above the age of 64, right? So age pyramid कैसा दिखेगा, age pyramid में bulge नजर आएगा, right? जो हमारा 20 to 40 का population है, इसमें हमें bulge नजर आएगा, right? So it is almost going to be shaped out almost like this, right? Shaped like this. So ये जो 20 to 40 का population है, ये ज्यादा दिखेगा, जबकि जो 65 प्लस पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस, और जो हमारा बिलो 15 पॉपुलेशन है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस. ठीक, सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. Now demographic dividend helps in high labor supply. Demographic dividend can also be related to savings in the economy, right? तो demographic dividend किन किन चीजों में बेसिकली हेल्प करता है, राइट? So demographic dividend helps you in terms of savings. So during the demographic period, the personal savings in the economy basically grow out, right? जो आपकी एक हाउसहोल्ड है, एक एवरेज हाउसहोल्ड है, उसकी सेविंग्स रेट जो है वो तेजी से ग्रो करेगा, right? Due to which the demand factor in the economy will grow out, and thereby automatically on the basis of demand, the production in the economy also grows out. ठीक, दूसरा फैक्टर लेबर सप्लाई, right? Because I have a higher number of population in the age group of 20 to 40, so the labor supply is also relatively higher in such economies. Third, human capital, right? So with lesser number of births taking place, parents also can allocate more resources per child. Thereby, human capital also grows. So parents, an average family household can basically spend more on education, more on health outcomes, and thereby the human capital in the country also grows out. And finally, the fourth parameter, which is economic growth, sir, right? So GDP per capita also is increased due to decrease in the dependency ratio. GDP per capita is also increased due to decrease in the dependency ratio. समझ में आई बात, right? कि हमारे पास 64 and above population का नंबर कम है, below 15 population का नंबर कम है, केवल दो चीजों की वजह से, right? हमारा जो crude birth rate है, crude birth rate, इसको हम CBR भी कहते हैं, राइट, वो लो है, और क्रूड डेथ रेट इज ऑल्सो लो. ठीक है जी. सो मेडिकल एडवांसमेंट्स के कारण जो डेथ रेट होगा वो भी अपने आप कम हो जाएगा. ठीक, और जो बर्थ रेट है वो तो लो है ही, ड्यू टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज. ये सुनो, समझ में आई बात? सो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो है हमारे इन चार एरियाज से रिलेटेड है, और ये चारों ही इकोनॉमी को थ्रस्ट देने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या रोल है, राइट? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड, टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड वी नीड एन इकोनॉमी हैज टू गो थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. एक इकोनॉमी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थ्रू पास करना पड़ेगा, राइट? सो एक इमेजिन करिए इंडियन इकोनॉमी, राइट, बैक इन 1950s 1960s 1950 1960 के दशक में इमेजिन करिए इंडियन इकोनॉमी को, जब हमारे पास बहुत बड़ी एक रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा था, फर्टिलिटी रेट, और हमारे पास मॉर्टेलिटी रेट्स भी हायर थे, राइट? तो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायरिया, राइट, जैसी बीमारियां, फीवर, राइट, ये सारी की सारी बीमारियां बहुत घर करी हुई थी. सो मॉर्टेलिटी रेट्स भी हाई थे, डेथ रेट वाज आल्सो हाई एंड फर्टिलिटी रेट वाज आल्सो हाई. एक एवरेज हाउस होल्ड में आपको ऑन एन एवरेज जो है 10 बच्चे मिल जाएंगे, राइट? सो कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफी है, राइट, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट दैट हाई नंबर ऑफ kids will basically be able to survive, right? And thereby over the period of time they will be able to help the entire family, right? लेकिन वो डिपेंडेंसी का फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, right? Now over the period of time, as these fertility rates and mortality rates subside down, as they decrease, right, the economy also undergoes certain changes. पूरी की पूरी इकोनॉमी भी अपने आप में कुछ चेंजेस विटनेस करती है, और इसे ही हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, right? So demographic transition theory
can be used to describe and predict the future population of any area. So the theory says that population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. जैसे जैसे लिटरेसी के पैरामीटर्स ग्रो करेंगे, इंडस्ट्रीज अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगी, अपने आप ही, राइट, एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रियल की तरफ मूव करते हुए automatically we will witness low births and low death in the society. Now these changes occur, these collective changes that occur in the entire society, in that entire region, this is called as demographic cycle. ठीक है, तो ये है हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. तो आप इसमें देख सकते हैं कि अमेज़न बेसिन ट्राइब्स के लिए आपको क्या आपको बेसिकली ग्राफ मिल रहा है, या इथियोपिया के लिए आपको क्या ग्राफ मिल रहा है, राइट. सो अमेज़न बेसिन ट्राइब्स अगर आप देखें, राइट, प्री 1760 तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बर्थ रेट के कारण डिपेंडेंट पॉपुलेशन बिलो 15 बहुत तेजी से मिलेगा, राइट, बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, ये सुनो, ठीक. और आपको बीच वाली पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, आपको +65 पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट. इसका मतलब डिपेंडेंसी फैक्टर अभी भी रिलेटिवली वेरी हाई. देन इफ यू कंसिडर इथियोपिया, इथियोपिया में भी देखिए अंडर 15 पॉपुलेशन इज अगेन वेरी हाई, राइट. इंडिया के केस में क्या होता है, 1870 टू 1950 हमारे पास भी वही प्रॉब्लम है, वही सिचुएशन है, राइट, कि हमारे पास जो अंडर 15 पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है. क्यों? बिकॉज ऑफ हायर बर्थ रेट इन द इकोनॉमी. सो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट के कारण ऑटोमेटिकली हमें वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड कभी विटनेस नहीं करेंगे, राइट. समझ में आई कहानी है. Now, what about demographic dividend in the entire world? अगर आप 4 मेजर इकोनॉमीज आज की डेट में कंपेयर करते हैं, 4 बिगेस्ट इकोनॉमीज टुडे, राइट, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो चारों इकोनॉमीज में से इंडिया हैज द मोस्ट एडवांटेज हियर, राइट. सो बाय द ईयर 2020 इंडिया इज गोइंग टू हैव हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ऑल द 4 लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. और चारों का आपको ग्राफ नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ चाइना यू हैव दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. आपको ये 30 to 40 के बीच में जो पॉपुलेशन साइज है वो कम नजर आ रहा है, राइट. ये 2008 है एंड यू कंपेयर इट विद 2020, राइट. अब ये पॉपुलेशन 30 years लेटर, जब ये व्हेन दिस पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट ओल्ड, दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, राइट. नाउ टेक द केस ऑफ इंडिया. इंडिया के केस में आपके पास अंडर 20 पॉपुलेशन है. अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ड्यू टू हायर मेडिकल फैसिलिटीज, दिस पिरामिड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू ग्रो इनटू दिस शेप. तो ये बल्ज नजर आएगा मुझे 20 to 40 वाली पॉपुलेशन के लिए. जापान के लिए उल्टा है सर, एजिंग पॉपुलेशन है, तो आप देख रहे हो कर्व नीचे से नैरो है जबकि ऊपर से ब्रॉड हो रहा है, ठीक. यूएस के लिए भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, हाँ या ना. तो यहां पर आपको बस सिंपली लायबिलिटी कंसिडर करनी है और असेट कंसिडर करना है. यहां पर असेट माना जा रहा है किसको, जो 20 to 40 पॉपुलेशन है, 20 to 40 years ऑफ एज. लायबिलिटी कौन हो गया सर, लायबिलिटी इज अंडर 15 एंड अबव 64 या अबव 65, राइट. सो भारत के केस में हमें जो है ऐसा कुछ कर्व देखने को मिल रहा है, राइट. सो अबव 64 जो है पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी. अब इसका मतलब ये भी है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2070 या 2080 तक आते आते, राइट, वी आर गोइंग टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट. तो यहाँ पर दोनों ही है, देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन. ऑन वन एंड वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, ऑन द अदर एंड आई हैव डेमोग्राफिक ट्रैप आल्सो, ठीक है. एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दूसरी तरफ डेमोग्राफिक ट्रैप भी है. बिल्कुल, यूएस इज आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली अनुराधा. सो वर्किंग पॉपुलेशन जरा कंपेयर करके देखो आप, राइट. हमको लगता है आज की डेट में चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, हाँ जी आज है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, राइट. क्यों? वन चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी है, दे हैव टेकन द रूट ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी. और वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू कम डाउन, ठीक. टेक द केस ऑफ अफ्रीका. Now, Africa will also have a higher number of people in the working age group, but human capital will grow out to that potential. उस पर एक big question mark है, right? So we can't really say that
people in Africa will be able to have the same set of education level or will be able to have the same set of health facilities as in India. तो इस पूरे कर्व में क्या दिख रहा है मुझे? केवल एक ब्लू नजर आ रहा है which basically represents my India. So इंडिया के पास ये एडवांटेज रहेगा by the year 2050 और 2051 to be very precise. 2051 तक हमारे पास ये एडवांटेज है. ठीक है, समझ में आया यहां से? So 2020 से आ रहा है हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज, राइट? So since 2018, India's working age population, which means people between 15 and 64 years of age, has grown larger than the dependent population, which is below 15 and above 64, right? And this bulge in the working age population is going to last till 2055, या फिर roughly हम कहते हैं 37 years since the beginning. अब अगर मैं इसमें मेजर इकोनॉमीज को कंपेयर करूं कि किस इकोनॉमी के लिए कब डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज आई थी, तो आपको मिलेगा कि नेक्स्ट इन लाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश है. These are two major countries which are next in line, right? So जापान के पास स्टार्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड था 1964 में, right, which ended in 2004. इटली के पास था 1984 में, which ended in 2002. रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया 1987 to 2027. स्पेन के पास 1961 ended in 2014, just 23 years. ठीक. चाइना के पास 1994 2031 में एंड हो जाएगा 37 years में. थाईलैंड के पास अगेन 34 years 1994 to 2028. ब्राजील 2006 to 2038, which means over a span of 32 years. और नेक्स्ट इन लाइन कौन दिख रहा है? ये दो देश दिख रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश. इंडिया और बांग्लादेश, राइट? तो मैं मेजरली किसकी बात कर रहा हूं? मैं मेजरली यही फ्लैट कर्व की बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो असेट्स का नंबर होगा, मतलब कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का नंबर होगा, वो बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू डिपेंडेंसी पॉपुलेशन विच इज बिलो 15 एंड अबव 64. बस इतना सा फैक्टर्स आपको समझाना था, राइट? सो 2018 से लेके 2055 तक हमारे पास ये एडवांटेज रहेगा 37 ईयर्स तक. और ऑलमोस्ट सिमिलरली ऐसे ही एडवांटेज बांग्लादेश के पास भी है, राइट? ऑलमोस्ट सिमिलर सा एडवांटेज है बांग्लादेश के पास भी. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा डिपेंडेंसी का नंबर बढ़ना शुरू होगा. डिपेंडेंसी पॉपुलेशन ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज. डिपेंडेंसी पॉपुलेशन ग्रुप इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है? Now let's talk specific to India. So demographic dividend opportunity for India. So in the near future, India will be the largest individual contributor to global demographic transition. जो आपको आज सिचुएशन नजर आती है ना कि कहीं पर भी हम जाएं, क्रिकेट स्टेडियम में हम जाके देखें, तो मेजरली विराट कोहली ने भी कहा था कि 50% जो है आपको फैंस इंडिया के ही नजर आ जाएंगे अगर इंडिया कहीं पर खेल रहा है, राइट? अब आपको ये जॉब्स में भी नजर आएगा. 50% तो नहीं, पर हाँ, right, you'll find a substantial number of Indians working outside in other global economies also. क्यों? सिंपल सी बात, वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा कंट्री का, राइट? So the country will have the youngest workforce in the world, and by 2026 the average age in Indian economy is going to be 29 साल, which is the least among the global average. So Economic Survey 2018-19 had predicted that India's demographic dividend is going to peak around 2041. 2041 वो साल होगा, जैसे आज आप चाइना को देखते हैं ना कि आज सब कुछ है, तो 2041 में जब आप बैठ के देख रहे होंगे, if we utilize this opportunity, right, you will find India at the topmost position, right? So 2018-19 Economic Survey predicted, right, that India's demographic dividend peak will be around 2041, where the share of population between the age group of 20 to 59 is expected to hit its maxima of 60%, 59-60%, right? And the median age of India will be much lower than that of China and even other developed nations today. Median का मतलब on an average जो age होगी इंडिया में, right? Maximum लोगों की जो age होगी वो काफी हद तक कम होगी as compared to people in other nations like China and other developed countries. So India's demographic opportunity, right, 2031 से आप कह सकते हैं 2031 से 2041 तक कुछ इस प्रकार की होगी, जहां पर बर्डन को बेयर करने के लिए जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, काम करने वाली जो जनसंख्या होगी, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% होगी,
और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का नंबर एकदम मिनिमम होगा 35% के आसपास, 35% के आसपास, राइट। सारे रफ नंबर्स हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट। सो 60 to 65, 35 to 40 चलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर आइंग फॉर, राइट। हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट, कि अगले 10 सालों में जब ये अपॉर्चुनिटी आती है, ग्लोबली रेलेवेंट स्किल्स जो रिक्वायर्ड हो उस समय पर वो हमें आते हो, राइट। क्योंकि अगर स्किल सेट आएगा तभी हम जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। जरा कंपेयर कर लेते हैं अपने फ्रेंडली नेबर को। लेट्स कंपेयर इंडिया वर्सेस चाइना इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। So Chinese economy has witnessed unparalleled economic growth during the transition phase. हम चाइना के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं. We can learn this from China. China has actually done this, right? However, demographic process will now contribute to faster aging of Chinese population. उनकी जो फास्टर ये जो यंग पॉपुलेशन थी अब ये फास्टर एज करेगी. Also, interestingly, India is currently in a phase where the population is relatively young. इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जॉब स्विच ओवर होकर कहाँ आएंगी? इंडिया में आएंगी या इंडियंस करेंगे इस जॉब को बाहर जाके, राइट. सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज अवेलेबल टू अस, राइट. किसी एक के लिए नहीं, इट इज कलेक्टिवली प्रेजेंट फॉर द एंटायर कंट्री, राइट. सो इंडिया हैज 650 मिलियन पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 25 to 65, whereas China has 830 million. 2040 तक सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, राइट. सिचुएशन इज गोइंग टू रिवर्स आउट. India will have 170 million more working age people than China by 2040. 170 मिलियन लोग ज्यादा होंगे हमारे पास. आज जो हमें कम नजर आ रहा है, 2040 तक जाते जाते वो नंबर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ठीक है. सो हमें जो है ना बिल्कुल जो मैं बता रहा था आपको, बिल्कुल ऐसा शेप मिलता है, बिल्कुल डोम शेप्ड, राइट. और ये इंडिया के लिए मिल पाता है ऐसा कर्व हमें. We don't find such curves for other countries. समझ में आई इतनी बात? Yes or no? Interesting topic, right? अब यहां तक सब कुछ अच्छा है, राइट. वही वाली बात है ना, मेरे सपनों का भारत डिस्कस हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं. There are certainly some challenges here. इसको पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. There are certain issues, there are certain challenges that we need to fulfill. क्या है चैलेंजेस? क्या है चैलेंजेस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए? सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ स्किल्स एंड लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री, राइट. हमारे पास एजुकेशन के पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ बेसिक स्किल्स है. मतलब आज की डेट में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है ग्लोबल इकोनॉमीज में, वो स्किल सेट बहुत ही कम इंडियन पॉपुलेशन के पास अवेलेबल है. सो 130 आउट ऑफ 189 ये हमारी रैंक है यूएनडीपी के एचडीआर इंडेक्स में, राइट. सो ये भी अपने आप में दिखा रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे बहुत लो रैंक कर रहा है इंडिया. प्लस इंडियन इकोनॉमी इज मेजरली एन इनफॉर्मल इकोनॉमी, राइट. मतलब यहां पर क्या है, लॉज के अंडर नहीं आती, लॉज के अधीन नहीं आती, सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, राइट. सो वी ऑल्सो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्मल सेटअप, फॉर्मल इकोनॉमी, राइट. नेक्स्ट बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के लिए वो है that Indian economy has grown out but has not been able to create as many jobs, high paying jobs as per the growth rate. So growth rate तो high नजर आ रहा है, economic growth rate is relatively higher, but the rate of creation of jobs is nowhere matching to this rate of growth of the economy. So ये jobless growth की situation भी अपने आप में बहुत problematic है, right. Working age ratio growth is not same in all the states of India. जो ये वर्किंग एज रेशियो हमने लिया ना, ये हमने ओवरऑल इकोनॉमी के लिए लिया, ओवरऑल इंडिया के लिए. अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो दिस इज नॉट द सेम. हमारे जो सर्दर्न स्टेट्स हैं, दे विल स्टार्ट एजिंग अर्लियर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स. सर्दर्न स्टेट्स की अगर आप बात करो तो 2040 से वो बेचारे मिस कर जाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, राइट. 41-42 से, राइट. तो उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में वो पीक टाइम होगा, राइट. So working age ratio growth is not the same in all the states, so we need to balance this out, right. हमें उस पर्टिकुलर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी, सेक्टर्स को बूस्ट देना होगा, राइट. तो यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है, बड़ा अच्छा ग्राफ है. इसमें बीमारू स्टेट्स इसने मेंशन किया है, हालांकि अब हम इन्हें बीमारू स्टेट्स नहीं कहते, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को, राइट. तो
इन स्टेट्स के लिए जो नंबर है हमारे पास, दैट इज लाइकली टू गो अप अबाउट 40 to 44%. ठीक है, जबकि 5 साउथ इंडियन स्टेट्स दे विल सी देयर कंबाइंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन फॉल फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ अबाउट 15 to around 12%, 15 to 12% to around 12% by the middle of the century. मतलब 2050 तक जाते जाते इनका जो कंबाइंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो गिरेगा, जबकि बीमारू स्टेट्स का जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो इन स्टेट्स का शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, जबकि सर्दर्न स्टेट्स का शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. ठीक है जी, शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट चैलेंज है लो प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी एंड वेरी हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो लो प्रोडक्टिविटी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नेगेटिवली इंपैक्ट करता है इकोनॉमी को, राइट. फॉर एग्जाम्पल इसने ग्रीन में दिखाया है हमारे पास प्रोडक्टिव सेट ऑफ पॉपुलेशन है, राइट, हायर सेट ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. अगर हमारे पास प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हाई है और ये मेरे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट में ये अबव 64 हो गए, छड़ी पकड़ रखी है, अबव 64 हो गए, राइट. लेकिन ये जो येलो में दिखा रखा है, इफ दीज पीपल आर लेट्स से अंडर द एज ऑफ 15 और दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट, अगर ये अनएम्प्लॉयड भी हो गए, अभी तो इन्होंने केवल और केवल चाइल्ड दिखाया, राइट. जस्ट ट्राई एंड कंपेयर, इफ दिस पर्सन आल्सो बिकम्स अनएम्प्लॉयड, तो यहां से नंबर क्या होगा, दीज टू पीपल दे विल आल्सो कम हियर, राइट. ये भी यहीं पहुंच जाएंगे अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में. सो अपने आप डिपेंडेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रो कर जाता है सर. ठीक है, मतलब आदमी है, जॉब भी है, रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है, या किसी और कारणवश इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है. और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ये क्या करेगा सर, ये स्टेट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होगा. कहेगा आके मुझे नौकरी दो, बेरोजगारी भत्ता दो, राइट. सिंपल सा फैक्टर. समझ में आई बात? तो हमें नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स को कम करना है. वी हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स. अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ग्रोइंग बिजनेसेस इन द कंट्री, राइट. क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. ठीक है, आज बिजनेसेस 2-4 फेल भी हो गए, बट दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर. स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर. ये सुनो, ठीक. अब ये जो आपके सामने इमेज है, दिस इमेज इज बेसिकली ट्राइंग टू शोकेस what will happen if we get on this bus of growth, right, and we reap the benefits of demographic dividend, and what will happen if we miss demographic dividends. और ये इन्होंने पर्सपेक्टिव जो कंसिडर किया है ना इस पूरे इमेज में, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडोलेसेंट गर्ल. मतलब कि जो फीमेल पॉपुलेशन है कंट्री में, यंग फीमेल पॉपुलेशन, अगर ये इसको हम इंक्लूड नहीं करते डेवलपमेंट की प्रोसेस में, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एक्सेस नहीं है फैमिलीज को, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हो रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. सो मोर नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स दे विल बी मैरिड ऑफ अर्लियर. चाइल्ड मैरिज नजर आएगा, स्कूल से छोड़वा देंगे, राइट, लिविंग स्कूल. देन रिपीटेड प्रेगनेंसीज, चाइल्ड इलनेस नजर आएगी, डेथ नजर आएगी. मैटरनल मॉर्टेलिटी नंबर्स ग्रो करेंगे, मैटरनल मॉर्बिडिटीज ग्रो करेंगी, राइट. जो सर्वाइव कर जाएंगी दे विल बी फोर्स्ड टू वर्क इनटू इनफॉर्मल वर्क. इनसिक्योरिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, और एंड में इनसिक्योर ओल्ड एज. इनसिक्योर ओल्ड एज है ना, विधवा पेंशन पे जो है गुजारा करना पड़ रहा है. इनसिक्योर ओल्ड एज. तो ये क्या हुआ, मिस कर गए डेमोग्राफिक डिविडेंड की बस को. हमें क्या है, वी नीड टू कंसिडर बोथ सेट्स ऑफ जेंडर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी कांट जस्ट कंसिडर वन सिंगल जेंडर. केवल एक मेल जेंडर के रिस्पेक्ट में नहीं सोच सकते कि इकोनॉमी बिल्डअप हो जाएगी. वर्कफोर्स कंप्लीट होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द जेंडर्स, राइट. एंड इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स वी आल्सो नीड टू इंक्लूड द यंग फीमेल पॉपुलेशन. समझ में आई बात? सो दे विल स्टडी इन स्कूल्स, दे विल गेट एम्प्लॉयड, एडल्ट लेवल्स पे जाके मैरिज हो, राइट, व्हेन दे आर मैच्योर इनफ, हेल्दी चिल्ड्रन, सिक्योरिटी ऑफ प्लेस, वर्क लाइफ बैलेंस विल बी मेंटेन्ड, राइट. लाइफ लॉन्ग अर्निंग, हाउस होल्ड की अर्निंग्स में सपोर्ट कर रही है, राइट. ऑटोमेटिकली वेल्थ, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट. और ऑटोमेटिकली यू गेट सिक्योर ओल्ड एज.
यू गेट सिक्योर ओल्ड एज। तो बेटा ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक पर्सनल लेवल पर, एक फैमिली के लेवल पर ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हमें क्या है, ये सारी चीजों से खत्म करना है। वी हैव टू बेसिकली रिमूव ऑल ऑफ दिस बाय फॉलोइंग दीज और बाय मेकिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स। ये कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स बीच में लिखी हैं ग्रीन एरोज में, दीज आर व्हाट वी नीड टू डू इन द इकोनॉमी, राइट। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, लॉज पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, राइट, जो वायलेंस को कर्ब करें, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को बिल्कुल हटा दें, यूथ बेस्ड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें, लाइफ लॉन्ग अर्निंग को सपोर्ट करें, सोशल सेफ्टी नेट इंश्योर करें, इंसेंटिव्स दें, राइट, इंसेंटिव्स दें, और वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें बिजनेसेस के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। सो कैसे रीप करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? सर, India's labor force needs to be empowered with the right set of skills for modern economy, increase spending on educational infra, healthcare improvement and emancipation of women. ठीक है, ये कुछ फोकस एरियाज हैं। और गवर्नमेंट के एंड से आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? व्हाट डज द गवर्नमेंट नीड टू डू? गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल पॉलिसीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, प्रोग्राम्स बिल्ड करने पड़ेंगे एक्सप्लिसिटली, राइट। गवर्नमेंट को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट, टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। Government has to create enabling conditions for job growth. मतलब सर ease of doing business, right? And good governance to strengthen social contracts, reduce inequality and promote efficiency in the economy. क्यों? अगर ये नहीं किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर इन लेवल्स पर हिट नहीं करती है, तो सर फिर वापस डीमन आ जाएगा, विच इज आर डेमोग्राफिक ट्रैप। ठीक। और डेमोग्राफिक ट्रैप क्या है? इस सिचुएशन में जो हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बेसिकली बर्डन बन जाती है, राइट, दैट एक्ट्स लाइक अ बर्डन। सो सिचुएशन दैट अराइजेस इन अ कंट्री और अ रीजन व्हेन पॉपुलेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स लोकल इकोसिस्टम, देयर इज नोवेयर फॉर द पीपल टू गो एंड द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस insufficient goods or services to exchange for food and other essentials. So a country that fails to achieve the complete demographic transition will fall back to the original stage of high death rate and high birth rate also. मतलब कि सर दोबारा से शुरू करेंगे पूरी की पूरी कहानी, राइट। वो जो सिचुएशन थी हमारे पास 1900s की, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट्स की, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। So most nations in Southeast Asia, Latin America and Africa, they are at risk of demographic trap only. मैंने बताया ना आपको अफ्रीका का, अफ्रीका में पॉपुलेशन तो होगी लेकिन हमारे पास ह्यूमन कैपिटल के नंबर्स कम होंगे, राइट। और ह्यूमन कैपिटल के नंबर्स कम होने से ये बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, ये डेमोग्राफिक ट्रैप में कंट्रीब्यूट करेगी उस कंट्री के लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिका हो गया, राइट, अफ्रीकन नेशंस आ गए इसमें, मेक्सिको आ गया, राइट। सो इनमें ये चांसेस हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक ट्रैप ऑल टुगेदर। ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रैप कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन बस बेसिकली बढ़ जाता है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पर हाई बर्थ रेट दिखाई देगा। सीबीआर का मतलब, सीबीआर मींस हाई क्रूड बर्थ रेट, हाई क्रूड बर्थ रेट। लो सीडीआर का मतलब क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट। ठीक है। सो हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, इसका मतलब स्ट्रेन ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। स्कूल्स पे पैसा खर्च हो रहा है, डे केयर पे पैसा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसा नहीं बचा गवर्नमेंट के पास, विच मीन्स नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स दे आर पेरीफेरी बेस्ड जॉब्स, राइट। एग्रीकल्चरल डेंसिटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब्स बढ़ रही हैं, राइट। और आपको पता है एग्रीकल्चर तो लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन टर्म्स में लीस्ट कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो चिल्ड्रन दे आर परसीव्ड एज इकोनॉमिक एसेट्स। सो चिल्ड्रन पैदा करने में जो है फोकस होगा, राइट। सो फैमिलीज दे विल कीप प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ किड्स, सो बर्थ रेट विल कीप इंक्रीजिंग एंड दिस ट्रैप इज गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है जी, चलो। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस टॉपिक में, राइट। ऑल्सो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस. So these are the free timings of our classes that come up daily. ये कुछ timings हैं जो free classes जो आती हैं हमारे पास daily की.
So 8:30 से हमारे पास हाईलाइट्स आ रहे हैं अब, डेली हाईलाइट्स ऑफ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. सो वी हैव चेंज दिस. ठीक है, 5 बजे वाला टॉपिक भी हमारा चेंज हो गया है. सो ये 2 चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस जो आप देख पा रहे हैं. ठीक है, 1 बजे हमारे पास स्कोर 120 प्लस यूपीएससी सीरीज शुरू हुई है. राइट, इसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं हम. 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं. अगर आप 2022 टारगेट कर रहे हैं तो ये 8 PM वाली सीरीज चल रही है. राइट, इसके अलावा एक नई चीज़ और हमने शुरू करी है, स्टडी थ्रू मैप्स. स्टडी थ्रू मैप बिकॉज वी फाउंड दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. राइट, तो इसको भी हम कवर कर रहे हैं. सो जहां पर भी आपके शेड्यूल में फिट हो रहा हो, यू कैन बेसिकली यूटिलाइज दीज फ्री क्लासेस. द ऑनगोइंग कोर्सेज एट ग्रेडअप में वी हैव क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स वेयर हिंदी एंड इंग्लिश बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम February 10th. 2022 फाउंडेशन कोर्स फॉर GS प्री कम मेंस हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बैचेस, स्टार्टिंग डेट इसका 26 Feb है. Also, the revision course for EPFO is starting on March 3rd. So you can purchase Gradeup Super. Gradeup Super has its own benefits. So Gradeup के साथ, right, prep सही है तो live set है. So complete access to all the running and upcoming courses for UPSC CSE and EPFO exam. There is absolutely no need to purchase separate course for different exams, and you have best experienced faculty here teaching you, right? प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं रिवीजन पर्पसेस के लिए. इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल अपॉन दीज नंबर्स. सो दिस इज द सेट ऑफ फैकल्टी दैट विल बी टीचिंग यू इन योर क्लासेस. अभिषेक राठौर, कुंवर प्रतीक सर, रोहन त्यागी, हर्षमीत सिंह, वसु कटारा, बी तेजा साई. आई विल बी देयर. राजेश यादव, हर्षल उपाध्याय, वारिस सिद्दीकी, शैलेंद्र सिंह, हिमानी सूरी, पंकज बर्मन. Also, guys, you can join us on Telegram. So we are planning to bring live sessions with faculty where you guys will be able to ask questions directly from us and we'll respond to those queries. Also, we update everything on our Telegram channel regarding the timing of the sessions, study material, short notes, everything. So you can look up at this also. Join the Telegram group at Gradeup IAS Preparation. The name of the group is Gradeup IAS Preparation. Don't forget to like and share the session, like and comment and share on the session on YouTube. So all the very best. Thank you, Radha. Thank you very much. Thank you very much. So all the very best. I will see you guys tomorrow back at 5 PM. Don't forget to tune in. Take care. Have a great day. Bye-bye.